मैं हमेशा कहता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जो एक्चुअल चीज होती है वो दिखाई नहीं देती। उसको वही समझ पाते हैं जो इस गेम के प्लेयर होते हैं। अलेक्सा, मस्जिद के बाहर पिछले हफ्ते जो घटनाएं हुई जिसमें इजराइल के अंदर एक सिविल रायट्स हुए और एक एक्चुअली सिविल वॉर की सिचुएशन पैदा हो गई, और दूसरी तरफ हमास और इजराइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। हमास ने रॉकेट अटैक किए, पहले 24 घंटे में लगभग 1000 रॉकेट्स उन्होंने इजराइल के इकोनॉमिक और सिविल टारगेट्स के ऊपर फायर किए। तो अब ऐसा लगने लगा है कि जो इस बेसिकली ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये इसराइल का और फिलिस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा भी आगे बढ़ता है तो इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा होने वाले हैं। आज के इस एपिसोड में मैं यही बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, और साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि इसराइल की क्या रिक्वायरमेंट है, फिलिस्तीन की क्या रिक्वायरमेंट है, और वहां की जो ज्योग्राफी है और जो प्लेयर्स हैं वो कैसे इन चीजों को अपने अपने ढंग से प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वहां की ज्योग्राफी, जिसके बारे में हम अभी बात करने जा रहे हैं। It is so important to understand the geography of Israel, because without that understanding, you will not be able to understand the dynamics of this conflict. Israel is a very, very small nation. The total area is 22,145 square kilometer. Maximum length of the country is 420 kilometer and maximum width is 115 kilometer. Now, you can go to any part of Israel in a day and can come back. So you can imagine how much area is there. Total population is 87 lakhs plus. Means if you take the Indian context, even our, so many class B cities will have more population than Israel. Now let us come to the land part. On the northern side, you have got the Lebanon. Hezbollah is there, and they also keep on firing rockets in Israel from there. Then you have got the Golan Heights, and then you have got the Syria on, you can call it, northeast. Okay. Now Golan Heights were captured by Israel in 1967, and because of their strategic importance, they were not returned. Now West Bank, you can have a look. It is, you can see it is inside Israel only. And then you have got the Gaza. Now West Bank has got the mixed population, in the sense it was basically a Palestinian area captured in 1967, and now Israel wants to have the settlers there so that they can have the maximum area with them. Otherwise, as it is, Israel is always worried that it has got no strategic depth. Obviously, no population, no area, and no strategic depth. Palestinians inside, and then here, Gaza, they are there. So they are very, very insecure. Means now they have got a nation of their own, and they don't want to lose it. Now, Western Bank settlement is a settlement of Israelis is a very, very big issue. It is the point of contention. And then we have got the Jerusalem. Now, East Jerusalem and West Jerusalem. East Jerusalem is basically with the Israel, and West Jerusalem is dominated by Philistinians. So let us have a fair understanding of this. You have got the Jordan here, and you have got the Egypt. Both of them, they have got the peace agreement with Israel. Syria again remains a adversary, and Hezbollah in Lebanon remains a adversary. In addition to that, we have got other nations, but they are not in the, they don't have the boundary with Israel. You have got the Turkey, you have got Iran, and you have got Saudi Arabia, but actually they don't share the boundary with Israel. Main contention is basically West Bank, Gaza, Golan Heights, Hezbollah in Lebanon, and Hamas in Gaza, and of course you have got Syria.
who has got its own problems as on now. Let's have another look on the entire issue. The total population of Palestinians inside West Bank I am talking of, that is 27 lakhs 47,943, and that was the estimate of 2017. And there are settlers, around 3,91,000 settlers, and another 2 lakh plus Israeli settlers in East Jerusalem. East Jerusalem is here. So that is how it goes. What Israel has done actually, it has totally isolated the West Bank and Gaza, so that Israel, the population and all other Israeli areas, they are generally kept insulated. But actually it does not happen that way, because lot many Palestinians from West Bank or from Gaza, they come to Israel to work. There are checkposts maintained by the Israeli Defense Forces, IDF, and then they go back. There is a solid element of control on the Palestinian population inside West Bank and in Gaza. Gaza, of course, because there is no mixed population, it is basically Hamas control. So that is where the situation is on. So let's have a detailed look on the geography. This is going to be the proposed Philistine state, if at all it come into existence, and what sort of arrangement they are going to have with Israelis. So now you have got the Israel here, you have got the Mediterranean Sea. It is totally controlled by Israeli Air Force and the Navy. You have got the Gaza. Gaza is around 360 square kilometer area, and total population is almost, you can call it 2 million. Means population density here is very, very high. You have got the Gaza fishing zone, but again, Israel maintains a very tight leash here. Now, green is basically Israel. Blue, if you see, is basically Fatah. Fatah in the sense that is in the West Bank, this area. Fatah is basically Palestinian organization. And in Gaza, you have got the Hamas in control. In the West Bank, you have got the Fatah in control as far as the Palestinian population is concerned. In the East, you have got the Lebanon, where UNO have got the setup. And then, of course, you have got the Golan Heights. On the East, you have got the Syria. Now, as far as I'll come to this place. Blue, if you see it, it is basically means Fatah section, basically Palestinian area. In between, if you see green, that is the settlement by the Israelis. So along with the East Jerusalem is here, East and West Jerusalem. So East Jerusalem is basically Israeli controlled, Israeli settlement. Almost total 6 lakh Israelis, they have already settled in these areas. They have got the communication with them. They have got the protection. There are the checkpoints which are, controlled by the Israeli Defense Forces, so that the majority population of Palestinians, they don't create problem for them, security issues and all that. So Israel, for that matter, maintains a very, very tight control over the Palestinian population inside the West Bank. And that is the main problem now. Now, if there is a settlement, there is an area between Jordan and West Bank. The area is called Jordan Valley, and there is a river, Jordan River as well. This area is very, very fertile, and it is the source of water. So what the basically Palestinians are complaining, that Israel wants to capture this area and they want to control water. As it is, Palestinian farmers in West Bank, they are short of water. So now they complain, once this area is under strict Israeli control and they have got the water also, then it will be very difficult for the Palestinian to sustain them. So that is one way to look at it. There's quite a big area inside Israel, and that is why, to gain the strategic depth,
Israel is working on this plan to settle Israelis inside West Bank and then create a separate zones. Means Palestine will be there, independent nation, and Israelis in any case as independent nation will be there. Now this plan is there. It was supported by Trump in a big way. I don't know how much support now this new administration in USA they are going to support it, but now also if you see there is nothing against it as far as the USA or any other state is concerned. Though overtly European nations they want to have a say in the entire scenario in the sense they want to ensure that Palestinians in West Bank they must be giving they must be having a free hand in their own administration and they must be given their rights. Right now rights are there but they are on tight leash by Israelis, so Europeans do not want that. इसराइल के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि वो ऑलमोस्ट 50 लाख फिलिस्तीनियंस को इजरायली सिटीजनशिप देकर एक सेकुलर स्टेट इजराइल के नाम से बनाए। उन्होंने कहा कि ये यहूदी नेशन है और यहूदी नेशन ही रहेगा और यही एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से वो वेस्ट बैंक का एरिया अपने पास लेकर अपने सेटलर्स वहां पे रखना चाहते हैं और फिलिस्तीनियंस को बेसिकली सेग्रीगेट करना चाहते हैं वेस्ट बैंक और ऑफ कोर्स गाजा में। As far as their plan is concerned, Gaza and West Bank, they can be interconnected through a tunnel. They don't have any issue with that. Let us be very clear about it कि after all main issue क्या है। मेन इशू जो इजराइल है उसके मन में ये है कि उसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है और चारों तरफ वो एडवर्सरी से घिरा हुआ है, उसको स्ट्रेटेजिक डेप्थ चाहिए। दूसरी बात जो फिलिस्तीनियन है उनको क्या इशू है, उनको जो मेन इशू है कि वो अगर वेस्ट बैंक और गाजा में रह जाते हैं और उनका एक इंडिपेंडेंट नेशन इस तरीके से बनता है जो बेसिकली इजराइल पर डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए, तो ऑब्वियसली उनको वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वेस्ट बैंक में जो फिलिस्तीनियंस हैं उनकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी है और अगर जॉर्डन वैली और जो वहां के जो बेसिकली एग्रीकल्चरल एरियाज हैं अगर वहां पर इजरायली सेटलर्स सेटल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली काफी हद तक फिलिस्तीनियंस को वहां पर प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इसके अलावा और जो कोई इशू है जो बेसिकली जैसे ये अभी जो प्रेसिपिटेट हुआ है जिसके ऊपर करंट कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, अल अक्सा मॉस्को मस्जिद है ये अल अक्सा की, ये मक्का मदीना के बाद मुसलमानों के लिए तीसरी सबसे पाक जगह है, उनके अपने रिलीजियस रीजन्स हैं, लेकिन इस मस्जिद का जो कंपाउंड है और एक जो होली वॉल है कंपाउंड पर जो यहूदी हैं वो भी उनके लिए भी वो मींस सैक्रेड है, उनकी भी कुछ उसमें एक रिलीजियस स्टोरी है और जो वॉल है इस मस्जिद की वहां पर यहूदी भी पूजा करते हैं। तो बेसिकली इजराइल ने क्या किया उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि आप जो ऑब्वियस कंट्रोल मेजर्स होते हैं और उसमें सबसे बड़ा जो कंट्रोल था उसमें यह था कि 10,000 से ज्यादा लोग इस मस्जिद के अंदर आकर नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो ऑब्वियसली फिलिस्तीनियंस को ये बहुत बुरा लगा और जो अभी जो प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट हुआ है वो बेसिकली पिछले फ्राइडे को जब हुआ तो उस दिन एक तो ये इशू था और दूसरा इशू इस बात का था कि उस दिन इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में एक एक्चुअली रियल एस्टेट से रिलेटेड डिसीजन आना था जिसमें फिलिस्तीनियंस वो जो जगह है एक्चुअली वो जगह यहीं पर इस मस्जिद से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर है कि एक वो इजरायलीज और फिलिस्तीनियंस के बीच में जो इशू आना था उसका डिसीजन आना था। तो ये एक प्रेसिपिटेटिंग पॉइंट है बट एक्चुअल में ये मेन कारण नहीं है। मेन कारण है वेस्ट बैंक पर जो सेटलमेंट होने जा रहा है और जिसकी इजराइल काफी दिनों से तैयारी कर रहा है, दैट इज द मेन प्रेसिपिटेटिंग कॉज। और फिलिस्तीनियंस को नजर आ रहा है कि लॉन्ग रन में अगर इजराइल का ये प्लान कामयाब हो जाता है
तो वो पूरी तरह इजराइल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे अपनी सर्वाइवल के लिए। अलेक्सा, मॉस्को के बाद जो वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है उसमें कैजुअलिटीज हो रही हैं दोनों तरफ से, और इजराइल के अंदर एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जिसमें ऐसा लगता है कि सिविल वॉर जैसी हालत हो गई है, क्योंकि वेस्ट बैंक पर ऑलमोस्ट 30 लाख फिलिस्तीनियंस हैं और ये अपने आप में काफी एग्रेसिव हैं और इजराइल के लिए ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो प्रॉब्लम है ये पहली बार क्रिएट हुई है। वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम पे और गाजा पर जो इजराइल का कब्जा हुआ था वो 1967 में हुआ था, और उसके बाद फिलिस्तीनियंस के साथ उनका हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहा है। 1987 में एक्चुअली इंतिफादा जो अपराइजिंग बोलते हैं वो 1987 में हुई थी वहां पर, और उसी टाइम पे क्या हुआ कि हमास जो है इट वाज फाउंडेड बाय मिलिटेंट्स। एक्चुअली हुआ क्या कि पीएलओ के पास इनिशियल जो कंट्रोल था फिलिस्तीन टेरिटरीज का पीएलओ के पास था, उसके बाद धीरे धीरे करके हार्डलाइनर्स के पास ये जो कंट्रोल है वो आ गया। लोगों के पास शायद दूसरी कोई चॉइस नहीं थी, और जब हार्डलाइनर के पास ये कंट्रोल आया तो उसके बाद इजराइल में भी हार्डलाइनर्स जो हैं वो डोमिनेट होते चले गए, और इसी का एक सबसे बड़ा कारण है कि आज ये सिचुएशन प्रेसिपिटेट इस तरीके से हो रही है। गाजा और वेस्ट बैंक के अलावा अरब्स और फिलिस्तीनियंस इजराइल के अंदर भी हैं, जो कई एरियाज हैं लगे हुए एडजॉइनिंग वेस्ट बैंक एंड गाजा, इनको वो अरब इजरायलीज बोलते हैं। ऑलमोस्ट इनकी संख्या भी अच्छी खासी है, ऑलमोस्ट 2 मिलियन की इनकी स्ट्रेंथ अभी हो रखी है। 80% इसमें से मुस्लिम्स हैं, तो ऑब्वियसली बाकी क्रिश्चियंस और बाकी और कम्युनिटीज हैं। ये अपने आप को फिलिस्तीनियन सिटीजन्स बोलते हैं। इनकी एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी भी है, लेकिन इनको वोट देने का जो सिस्टम है इजराइल में वो काफी रेस्ट्रिक्टेड है। नोट दैट कि ईच वन ऑफ देम हैव गॉट द वोटिंग राइट, और इजराइल इस बात को एंश्योर करता है बिकॉज उसकी खुद की इनसिक्योरिटी है कि वहां पर कभी ऐसी सिचुएशन ना पैदा हो जाए कि ये जो फिलिस्तीनियंस हैं या अरब्स हैं वो मेजोरिटी में आ जाएं पॉपुलेशन वाइज, बिकॉज दे जनरली ग्रो फास्टर एंड दैट इज अ वेरी बिग अप्रहेंशन इन इजराइल। गाजा में जो पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर है आज एक्चुअली हमास के पास है, जो उन्होंने 2007 में कैप्चर किया, और जो राइवल ऑर्गेनाइजेशन है फतेह जिसका वेस्ट बैंक पर अभी होल्ड है उसको बाहर किया। तो जैसे ये हार्ड लाइनर्स वहां पर पावर में आए तो इजराइल ने भी एक हार्ड लाइन पोजिशन ले ली और उन्होंने उसके ऊपर इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा के रखा हुआ है। एज इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा नहीं है गाजा में, 360 स्क्वायर किलोमीटर में और इतने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में आप क्या क्या एक्चुअली कर सकते हो। जो नेवल ब्लॉकेड है वो भी एग्जिस्टेंस में एक्चुअली रहता है, बहुत ज्यादा मूवमेंट इजरायली नेवी और इजरायली एयरफोर्स नहीं करने देती। गाजा का जो बॉर्डर है वो इजिप्ट से भी मिलता है, लेकिन अगेन हमास की जो रिलेशनशिप है इजिप्ट के साथ बेसिकली लव एंड हेट रिलेशनशिप है। तो बहुत ज्यादा हेल्प हमास को एक्चुअली अगर आती है तो वो बेसिकली ईरान की तरफ से आती है, इजिप्ट और जॉर्डन की तरफ से बहुत कम हेल्प आती है। अब ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है इसमें हमास ने रॉकेट फायर किए, पहले दिन ही पहले 24 घंटों में उन्होंने लगभग 2000 रॉकेट फायर किए, और इजराइल ने अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया, और उन्होंने ऑलमोस्ट इजराइल का क्लेम है कि उन्होंने 90% रॉकेट्स को ब्लॉक कर दिए। जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि 80% तक ब्लॉक हो गए, बट ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रॉकेट तो इजराइल के सिविलियन और इकोनॉमिक टारगेट्स को उन्होंने डेफिनेटली हिट किया। अब इसकी एक इकोनॉमिक्स है। पहली इकोनॉमिक्स तो ये है कि जो हमास फायर करता है वो करीब $1000 का एक रॉकेट उनको पड़ता है। उसको ब्लॉक करने के लिए इजराइल को 2 रॉकेट फायर करने पड़ते हैं, 2 मिसाइल्स,
और हर एक मिसाइल की कीमत है लगभग $80,000। तो $1,000 वर्सेस $1,60,000, ये तो एक पॉइंट इसका आया। दूसरी बात ये कि 4 या 5 मिनट में ये, इनफैक्ट उससे भी पहले, ये रॉकेट जो हैं वो इसराइल के जो इकोनॉमिक टारगेट्स हैं या जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको हिट करने की उनकी कैपेबिलिटी है, क्योंकि डिस्टेंस ही बहुत कम है। मे बी ये हो सकता है कि 1 या 2 मिनट का ही रिएक्शन टाइम उनको मिलता हो, बट इवन देन इसराइल उस हिसाब से काफी कैपेबिलिटी के साथ काम कर रहा है। अब इसमें जो ओवरऑल अगर आप देखें तो हमास के पास तो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक टारगेट्स नहीं है, क्योंकि गाजा में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्चुअली है ही नहीं। बट इज इट पॉसिबल कि हमास इसराइल को एक मिलिट्री डिफीट दे सके? ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल। अगर इसराइल को ज्यादा ही एक्चुअली उनका नुकसान हुआ तो वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को और एयर फोर्स को अच्छी डिप्लॉय कर देंगे, नेवल ब्लॉकेड कर देंगे, और ग्राउंड एक्शन जब होगा तो ऑब्वियसली गाजा में काफी कैजुअलिटीज होंगी, सिविल पॉपुलेशन दैट विल आल्सो सफर। और हमास ने क्या किया हुआ है, अपने जो ऑफिस हैं, अपने जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, दैट सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, वो उन्होंने बेसिकली सिविलियन एरियाज में रखे हुए हैं जानबूझ के, एज ए सिविलियन पॉपुलेशन को वो एज ए शील्ड यूज करते हैं। तो जितनी कैजुअलिटीज होंगी वो कोशिश करेंगे कि इसराइल का उतना ही एक इंटरनेशनल एडवर्स पब्लिसिटी हो, स्पेशली वुमेन कैजुअलिटीज का या बच्चों की जो कैजुअलिटीज होती है, दैट बिकम्स ए बिग इशू इन द इंटरनेशनल मीडिया। अब जो मेन जो इश्यू है कि बेसिकली हमास को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो ईरान कर रहा है सपोर्ट, या फिर टर्की कर रहा है, और बाकी नेशंस भी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नहीं है कि वो इसराइल के अगेंस्ट में बैटल जीत जाए। लेकिन इसके अलावा एक जो इश्यू है कि इसराइल को वो इकोनॉमिक नुकसान कितना पहुंचा सकता है, और इसराइल इंश्योर करेगा उसको कम से कम लिमिट पे लेके आने के लिए। इसके अलावा एक जो बड़ा इशू है वो ये है कि हो सकता है सूनर और लेटर हमास के पास जो ड्रोन्स हैं, क्योंकि ईरान और टर्की दोनों ही एक्चुअली ड्रोन सुपर पावर है अपने आप में, दोनों के पास ड्रोन्स हैं, और इन्होंने ये ड्रोन हमास को दिए हुए हैं। ये मींस इट इज ए ओपन सीक्रेट। तो ऑब्वियसली सूनर और लेटर अगर ये लड़ाई आगे खिंचती है तो हमास ड्रोन्स को डिप्लॉय करेगा। बट ईरान, ऑब्वियसली ईरान और टर्की इस लड़ाई को बड़े एक्चुअली क्लोज वॉच रख रहे हैं, और दोनों का ही इंटेंशन है कि किसी न किसी तरीके से इसराइल को कमजोर किया जाए। बट इसराइल के पास वो टेक्नोलॉजी है कि वो ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करेगा, इसमें मेरे को पर्सनली कोई भी डाउट एक्चुअली नहीं है। חמאס עשה שגיאה חמורה שהוא החליט לירות על מדינת ישראל, וצה"ל יצא להתקפה שבמהלכה אנחנו פועלים על בסיס תוכניות שהכנו מראש, ויש לפנינו עוד מספר שלבים שמוכנים. אנחנו תוקפים בעוצמה רבה, שכוללת הישגים רבים שהובילו לפגיעה משמעותית מאוד במערך הייצור של חמאס וגאפ, באמצעי לחימה שיקח הרבה מאוד זמן לשקם אותם. במקביל אנחנו במאמץ של הגנה, אוויר, ים, יבשה, שהמשמעותי אולי ביותר זה מאמץ ההגנה מפני טילים ורקטות, שאתם אחראים לו במידה מוחלטת. זה מאמץ חשוב כי כולנו מגינים על אזרחי מדינת ישראל, ואלה ימים לא קלים לאזרחי מדינת ישראל. אני מקבל מהם חיזוקים ואני רואה את כוח העמידה שלהם, אבל אני מוצא את ההזדמנות לחזק אותם ולהביע הערכה כלפיהם, ואנחנו נעשה הכל כדי להגן עליהם באופן המוצלח ביותר. मुझे ऐसा नहीं लगता ये लड़ाई इसराइल और हमास के बीच में ही सीमित होकर रह जाएगी। इसका एक रीजनल एंगल भी है। रीजनल एंगल में ऑब्वियसली इस्लामिक नेशन से रिलेटेड है कि इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप किसके पास रहेगी। ईरान ऑब्वियसली और टर्की, पाकिस्तान, ये तीनों
डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्चुअली हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। सीरिया ऑफ कोर्स इज देयर, सीरिया एंड लेबनान। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है इसमें अरब नेशंस का, क्योंकि इजराइल ने ऑफ लेट हैज डेवलप्ड ए वेरी गुड रिलेशनशिप विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, बहरीन और जितने भी बाकी अरब नेशंस हैं। तो ईरान और तुर्की का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो इन कंट्रीज को एम्ब्रेस करने की कोशिश करे, और जिसकी वजह से वो इस्लामिक जो नेशंस हैं उसकी जो लीडरशिप है वो अरब नेशंस के पास से निकल के इन देशों के पास आ जाए। ये एक इसका एक एंगल है। दूसरा एंगल अगर आप देखें तो फिर वो सुपर पावर एंगल है। अब उसमें आप देखिए कि अमेरिका, रसिया और चाइना हैज गॉट ए वेरी बिग $400 बिलियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद ईरान। तो ऑब्वियसली अगर वो एग्रीमेंट है जो कि है, तो फिर चाइना के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है ईरान को सपोर्ट करने के अलावा। बट ओवरऑल वो एक एम्बिवेलेंट सी अपनी पोजीशन रखने वाला है। रशिया हैज एक्चुअली ऑलरेडी टेकन ए पोजीशन बिकॉज दे आर डिप्लॉयड इन सीरिया एंड दे आर एक्टिवली सपोर्टिंग ईरान एंड सीरिया, तो वो पोजीशन उनके पास रहेगी। बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर आप देखो तो इसके भी कुछ एंगल मुझे नजर आते हैं। जैसे चीन की जो अपने आप में जो रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप इजराइल के साथ अच्छी खासी है, और उसी तरीके से रसिया भी एक एम्बिवेलेंट रोल देता है इजराइल के अगेंस्ट में, मींस ओपन कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहता। तो अगर आप देखें तो इन सब का एक्चुअली एक इंटरेस्ट बन जाता है कि किसी न किसी तरीके से इस लड़ाई को यहीं पर खत्म किया जाए। लेकिन जो यूरोपियन नेशंस हैं, अमेरिका तो बिल्कुल क्लियर कट है कि वो इजराइल के साथ है, उन्होंने पोजीशन भी ली है कि इजराइल को अपनी डिफेंस करने का अधिकार है, एज सिंपल एज दैट। यूरोपियंस के लिए वेस्ट बैंक में जो सेटलमेंट अगर इजराइल करता है तो वो अपने आप में एक टची इश्यू है। वो उस चीज को कि एक इंडिपेंडेंट फिलिस्तीनियन नेशन बन जाए और दोनों इजराइल और फिलिस्तीन साइड बाय साइड एक्चुअली एग्जिस्ट करें, वो ये पोजीशन ले रहे हैं। मगर उनको जो इजराइल की इनसिक्योरिटी है उसको वो एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इजराइल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसकी जब इनसिक्योरिटी होगी तो ना तो कभी वो गोलन हाइट्स को खाली करेगा, ना कभी वेस्ट बैंक पे जो वो सेटलमेंट करने जा रहा है उसको रोकेगा। तो जो भी गेम किसी को खेलना है वो इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के बीच में खेलना है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।